Okay, in the last class, we were discussing about the scheming pricing strategy and the penetration pricing strategy, right? Can anyone tell me that what is the difference between both this type of pricing? Can anyone tell me? Any one of you can tell me that what is the मैम आप म्यूट हैं. Yes, who is going to tell me that what is the difference between penetration and the scheming pricing? We already did the comparison between both type of pricing, right? So in the last class, we were discussing about the scheming pricing. है ना? Scheming pricing complete हो गया था? Yes, रुचि, बताइए. मैम पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि लो इनिशियली होता है और इसमें ये होता है कि मार्केट को इंक्रीज करना और मार्केट इंक्रीज द मार्केट शेयर, और इसमें जो मार्जिन होता है वो बिल्कुल लो होता है और इसका जो डिमांड होता है वो प्राइस इलास्टिक होता है. एंड स्कीमिंग प्राइस क्या होता है, इसमें हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है और इसमें जो और इसका जो मार्जिन होता है बहुत ही हाई होता है और इसका मेनली मतलब इसका जो डिमांड होता है वो प्राइस इन इलास्टिक होता है. Good. Good. Okay. So let's move toward our topic, today's topic. I guess the scheming pricing we already completed, right? Yes, ma'am. Okay. So even I told you that why the scheming pricing is better, what is the reason of scheming pricing, what is the scheming pricing. So in today's class, we are going to understand that why the scheming, what is the benefit of a scheming pricing is completed. Complete हो गया ना benefit? Yes, ma'am. Advantage of skimming pricing complete. Okay, so what is the penetration pricing and what are the benefits of it? We are going to do that. So I already told you that the main reason behind the penetration pricing is to set the low price of the product at the initial stage, so that the consumers are going to purchase your product, right? For increasing the customer base and for increasing the market share, the penetration pricing is used. ठीक है? वैसी कंपनीज जो कंपनी के ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, तो वैसे सिचुएशन में वी हैव टू सेट द प्राइस लो एज कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज. ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में जब हम एंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राइस लो कर देते हैं अपने प्रोडक्ट का. ठीक है? With this method, what we can do, we can enter the market rapidly and grow a loyal client base. Loyal client base का मतलब पता है कौन होता है? Loyal client base is meaning of loyal client base क्या है? कि आपके जो customers हैं, they will become loyal toward your company. Once they will start purchasing the product, because of the low cost, they are basically attracted or influenced to purchasing the product. Once they will purchase the product, then they will become loyal. So for increasing the customer base, basically the loyal customer base, we are going to use this penetration pricing strategy. ठीक है? But in this situation, the profit will be very low at the initial time. हम यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्जिन पे बेस नहीं होते हैं. हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारे कस्टमर्स जल्दी बने, ताकि लॉन्ग टाइम पे हम प्रॉफिट तो ले ही लेंगे, है ना? लॉन्ग टाइम पे वी कैन इंक्रीज द प्राइस इवन ऑफ द प्रोडक्ट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फोकस्ड ऑन द customers and the market share. That's why their objective is never to earn the profit in the initial stage. ठीक है? They have very small margin, they have very less margin. ठीक है? Finally, when the demand जब increase हो जाएगा, you can set the price higher. Once you will get so many customers, and then you will understand that now people are become your customer. Then what they can do, they can basically set the higher price and later on. So this penetration pricing and the scheming pricing is always used in the initial stage. Yes, Durgesh? Ma'am, can we explain the penetration pricing and scheming pricing with profit maximization and wealth maximization respectively? हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगर कॉन्सेप्ट में हम बताएं तो देखिए, प्रॉफिट जो है आपका इन द केस ऑफ द स्कीमिंग प्राइसिंग, द प्रॉफिट इज ऑलवेज मैक्सिमाइज. ठीक है? बट इन दिस पेनिट्रेशन प्राइसिंग द प्रॉफिट इज नॉट मैक्सिमाइज, बट इन द लॉन्ग टर्म द वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज. एंड जस्ट ऑपोजिट वी कैन डू इन द स्कीमिंग प्राइसिंग, that in the short term we are able to increase मतलब यहाँ just opposite हो जाएगा. In short term you will increase the profit share,
but in the long term maybe there is a chances that the wealth which will be maximized that will be low in the scheming pricing. So just do the opposite of the thing. Clear हो गया दुर्गेश? Yes, ma'am. ठीक है, let's start with it. तो आपका जो penetration pricing है that have a limited profit because the company does not target the customers. The company does not target the customers willing to pay high prices. तो मतलब ये कभी उन customers को target नहीं करेंगे जो ज्यादा पैसा देने के लिए willing कर रहे हैं. और अगर इंडिया का मैं मार्केट बेस बताऊं तो इंडिया में आपका ऐसे भी हाई प्राइस पे करने वाली सिचुएशन बहुत लेस है, बहुत कम लोग हैं who is ready to pay the high price for the product. So majority of the people are the price sensitive. So here in the penetration pricing, like the scheming pricing, they are not even going to target on those people who are ready to pay the high price. ठीक है? So कंपनी जो है ये स्ट्रैटेजी को यूज करती है, लो कॉस्ट को यूज करती है ताकि उसका रिड्यूस, मतलब मे बी द कंपनी जो है often use the strategy combined with a low cost structure, meaning they reduce the cost to maximize the margin, and this is how the penetration pricing is working. Let's start with the benefits. What is the pricing, penetration pricing benefit? The first one is customer conversion. The first point is customer conversion. ये नहीं हुआ था ना लास्ट क्लास में, इसका बेनिफिट्स नहीं हुआ था ना? No, ma'am. ओके मैम पेनिट्रेशन प्राइसिंग का नहीं हुआ था. हाँ नहीं हुआ था ना, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्या बेनिफिट होगा? तो फर्स्ट वन इज कस्टमर कन्वर्जन. कस्टमर कन्वर्जन, कस्टमर कन्वर्जन, कस्टमर कन्वर्जन. सो अगर मैं बात करूं कन्वर्जन की, तो यानी कि द पीपल, द कस्टमर्स आर गोइंग टू कन्वर्टेड टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स. मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है, वो पहले मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहा था, मान लीजिए वो लिवाइस का जीन्स ले रहा था. नाउ वन कंपनी केम, लाइक द ब्रांडेड कंपनी कोई भी आई और उसने क्या किया, जो लिवाइस के कस्टमर्स थे उनको अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर लिया. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द सेम टाइप ऑफ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट इन लो कॉस्ट, एट लो कॉस्ट. So here in the penetration, what it can do, the penetration can help you to attract the customers away from the competing brand. यानी जो competing brands है उनसे उनको दूर करेगा. And if you pair the product launch with the efficient marketing. लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो विद अ प्रॉपर मार्केटिंग प्रोसीजर के साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो कई बार आपके वो कस्टमर्स जो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, दे विल मूव टुवर्ड योर ब्रांड. तो आपके कस्टमर्स का कन्वर्जन दैट इज पॉसिबल. क्लियर? क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What about Yes, others? ma'am. Okay. Next one is improved brand loyalty. Improved brand loyalty. Improved brand loyalty. ठीक है, improved brand loyalty. अच्छा, can anyone tell me what is the brand loyalty means? Anyone? When, in short, we can say that when a customer always loyal towards your product or towards your brand. Very good. Anyone Ma'am, else? brand loyalty is generated when customer or consumer is purchasing a high level of satisfaction from the product. Good. Basically, brand loyalty is something where we are emotionally connected with the particular brand. Like if you are purchasing a product, like it's totally vary. अब example में, if I am purchasing this bottle, like this is stainless steel bottle, so whenever I am purchasing this bottle, I am going to purchase it only from Milton. I am not going to purchase it from the Cello and the other brands. So here, when for purchasing this type of bottles, I am only preferring the Milton. So this is my brand loyalty. आई बात समझ में? And the brand loyalty can be vary according to the product. So if I am purchasing the other items, it might be possible that if I am purchasing the lunch box, ये जरूरी नहीं कि मैं मिल्टन का ही परचेज करूं, हो सकता है कि उसके लिए मैं दूसरे कंपनी को प्रेफर करूं. So it can be vary with the product. So here अगर मैं बात करूं penetration pricing की, so it is building a strong and loyal customer base. ठीक है, जो लो प्राइस है वो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर्स को तो आपकी तरफ ले आता है, आपकी कंपनी की तरफ,
लेकिन यहाँ पर what they want a product quality. Like why I am saying that I am going to purchase the bottle of Milton only. So loyalty is totally dependent upon my experience with that particular brand. आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, वैसा ही मेरा जो है लॉयल्टी रहेगा. अगर मेरा मिल्टन मैंने परचेज किया बहुत बार और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका बॉटल की क्वालिटी, ड्यूरेबल थी, बहुत सारी चीजें अगर मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं नहीं इसकी बॉटल्स बेटर है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू परचेज द सेम ब्रांड प्रोडक्ट, राइट? सो जो आपका ब्रांड लॉयल्टी को यहाँ पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग के थ्रू हम इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्राइस लो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी फिर भी फोकस करना पड़ेगा. कस्टमर जो है कई बार दे कीप बाइंग इट इवन यू इंक्रीज द प्राइस लेटर. अगर आपने कस्टमर को लो कॉस्ट में कुछ अच्छा प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्राइस इंक्रीज कर दिया तो वो कस्टमर जो है तब भी आपकी कंपनी का ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे. तो इन शॉर्ट the penetration pricing is converting those customers and they are basically making the people far from the competing brands, and it is also helpful for improving the brand loyalty. ठीक है? Once the people understand that the low cost strategy you are using, second the quality of the product is very fine, next time when they, if either you will increase the price of the product, they are not going to switch to the other brand. आई बात समझ में? So it is helpful for improving the brand loyalty, but always remember that penetration pricing is never supporting that you are also deteriorating the quality of the product. मतलब ये नहीं कहता कि अगर आप प्राइस कम करते जाओ, मार्जिन कम करो, लेकिन क्वालिटी भी खराब करते जाओ, ये नहीं कहता है कभी भी. याद रखिएगा. तो क्वालिटी आपको प्रोडक्ट का बेटर ही प्रोवाइड करना है. क्लियर? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next one is reduce competition. रिड्यूस कंपटीशन. अच्छा, कंपटीशन जो है वो रिड्यूस कैसे होगा? अब एग्जांपल में तुम लोग देखो कि अगर ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ये आपके बैरियर बना देगा एंट्री के लिए. अगर आप प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मार्केट से थोड़ा दूर हो जाएंगे. मतलब आपके कस्टमर से, आपके सेल से वो काफी दूर हो जाएंगे. दूसरी चीज, जो नए कॉम्पिटिटर्स और नए जो एंट्रेंट्स होंगे, जो नए आना चाह रहे होंगे मार्केट में, वो भी ये चीज देख लेंगे कि भाई आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो इतना लो है कि वो उनके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में ये भी बहुत पॉसिबल है कि जो नए एंट्रेंट्स हैं या न्यू जो कंपनीज जो एंटर करना चाह रही है मार्केट में, वो उसके लिए आपकी ये प्राइसिंग एक बैरियर की तरह बन जाए कि वो एंट्री ही ना करे मार्केट में. So because of this reason, entering in the market is not basically possible for the new entrants because of your pricing strategy. आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ आया कि अगर आपने प्राइस पहले से मार्केट में काफी लो करके रखा है, तो ऐसे केस में जो नई कंपनी है, हो सकता है ना कि वो आपके प्राइस को अफोर्ड ही ना कर पा रही हो, तो बहुत सारे तो कॉम्पिटिटर्स ऐसे बाहर चले जाएंगे कि भाई मैं इतने लो कॉस्ट में प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता या नहीं बेच सकती, जो भी कंपनीज है नहीं बेच सकता अगर वो कह रहा है तो ऐसे सिचुएशन में तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ना कि जब आपके कॉम्पिटिटर्स ही इंक्रीज नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है. क्लियर? Yes, ma'am. दुर्गेश, कौशल, वैष्णवी, निधि, सबको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. मैं कुछ ही बच्चों का नाम ले पाती हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं कि सबसे नहीं पूछ रही हूँ. सबसे ये क्वेश्चन है कि सबको क्लियर है ना? ठीक है. यस अंकित. मैम, सेल्स प्रमोशन टेक्निक से भी कंपटीशन रिड्यूस होते हैं ना? हाँ, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अगर आपने कम कर, मतलब अपना प्राइस प्रोडक्ट का बहुत कम रखा है मान लीजिए आपने, तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे ना, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो घबराएंगे आपके मार्केट में आने से, उस मार्केट में आने में, क्योंकि उस प्राइस पे वो शायद प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते. देयर दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी इज पॉसिबल. और ये भी नहीं कहूंगी कि उनसे लो कॉस्ट में कोई प्रोडक्ट को लेकर नहीं आ सकता, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है. लेकिन बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स जो, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके 100% कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, ये नहीं है. कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एक हद तक कम हो सकता है. ठीक है? यस दुर्गेश.
But this is not good for the long-term survival, na? Because if one price at more than one at the Exactly same what time, I told you. See, what I told you that this type of pricing, like scheming and penetration pricing, is always used in the initial stage. जैसे जब आपने मार्केट में तुरंत तुरंत एंटर किया और आप अभी इनिशियल इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में ही हैं, तो वहां पर आप इस प्राइस को यूज कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर्स बन जाए। एक बार जब कस्टमर्स बन जाते हैं, उनको आपके प्रोडक्ट की हैबिट लग जाती है, तो दे इन दैट सिचुएशन दे आर नॉट गोइंग टू मूव फॉर द अदर ब्रांड। बट ये भी हमेशा याद रखिएगा कि कस्टमर लॉयलिटी जो है ना, वो एक तरीके का मिथ भी बहुत लोग कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो कई बार 10-10 साल के लॉयल कस्टमर्स भी जो होते हैं, वो भी कहीं दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच कर जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन स्टिल मतलब मैंने यही चीज बोला आपको कि कंपटीशन आपका ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब आपके एक बार कस्टमर बन गए तो हो सकता है वो आप ही के ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते रहे लॉन्ग टाइम तक। जो नए वाले हैं वो मार्केट में एंटर भी करेंगे तो भी हो सकता है उनको बेनिफिट ना हो। तो कंपटीशन के लिए ना, मतलब एक तरीके से नए एंट्री के लिए एक बैरियर की तरह है अगर आप ये प्राइसिंग को यूज करते हैं। क्लियर? okay, ma'am. नेक्स्ट वन इज लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट, lower cost, I don't think so, I just need to elaborate this point, but still ठीक है। lower cost जैसे यहाँ एक चीज ये भी नहीं बोला जा रहा है कि आप जब आप लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कुछ कंपनीज लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है फिर भी वो आगे तक नहीं जा पाती, टिक नहीं पाती। उसका रीजन क्या होता है ना, कस्टमर। तो जब आप लोअर कॉस्ट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपका हाई सेल्स वॉल्यूम हो सकता है, मतलब सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है कि नहीं। एक बार जब बहुत सारे कस्टमर्स बन गए, आपका 50% मार्केट शेयर हो गया मान लीजिए। जैसे अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर आप देखोगे तो आपका सबसे ज्यादा पता है शेयर किसका है अभी यहाँ पे, मार्केट शेयर जियो का, जियो है ना। Yes, और ma'am. उसके बाद एयरटेल, और बाकी तो कंपनीज बचा नहीं। बीएसएनएल की बात करें तो बहुत ही लो शेयर्स है। तो जब आप लो प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपका सेल्स वॉल्यूम कई बार बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम हाई इसलिए क्योंकि लो कॉस्ट में बहुत सारे लोग परचेज कर रहे हैं। तो सेलिंग मेनी आइटम्स में अलाउ यू टू ऑर्डर टू सप्लाईज इन बल्क, यानी थोक में भी आपके प्रोडक्ट जो है वो सेल होते हैं कई बार। और जब आप थोक में प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, जब आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया और यहाँ पर सप्लाई चेन हो रहा है, जब आप थोक में प्रोडक्ट होलसेलर से परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इजिली लो कॉस्ट में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये चीज कहा जा रहा है कि जब आपका प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जब हम प्रोडक्ट पे यूज कर रहे हैं, तो इन एनी ऑफ द सिचुएशन यू आर बेसिकली विल बी इन द बेनिफिशियल फेज बिकॉज यू आर अलाउड टू सेल द प्रोडक्ट इन द बल्क, यानी कि एकदम थोक में आपके प्रोडक्ट जो है वो बिकने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, थोक में प्रोडक्ट बिकने की वाली बात से मैं तुम लोग को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट बताया था, शायद तुम लोग को याद होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल याद है कुछ? इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट याद है कुछ? एनीवन? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कुछ कॉन्सेप्ट किसी को भी याद है? अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग हैं जो मार्केट से वेजिटेबल परचेज करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? आई थिंक ये मैंने पहले भी पूछा होगा, पूछा था। हाउ मेनी ऑफ यू आर परचेजिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट? कितने लोग सब्जी खरीदते हो घर के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंकित अच्छा, खरीदता है मैम। खरीदते हो ना? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि कभी ऐसा सुना है क्या, वो जो सब्जी बेचने वाले बोलते क्या, जैसे कि हम लोग का सबसे ज्यादा कंजप्शन वेजिटेबल में किसका होता है पता है? पोटैटो का सबसे ज्यादा हम लोग खाते हैं ना। Yes, ma'am. हर चीज में रहता है। हाँ, वो फैक्ट है। बिकॉज आलू जो है वो क्या है, सब्जियों का राजा है। वो तो सब्जी। कॉन्सेप्ट पता ही है। अच्छा ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पता है ना, आलू जो है वो सब्जियों का राजा है। अब मैं ये क्यों यूज कर रही हूँ इसका मैं कंडीशन बताऊंगी। तो ऐसा तुम लोगों ने सुना, सब्जी वाले जो भैया होते हैं कहते हैं हमेशा कि अरे सर आप 5 केजी ले जाइए, आपको 10 रुपए कम लगा दूंगा। ऐसा होता है क्या? Yes, ma'am. होता है Yes, ना? ma'am. मैम लाइक when yes, you're केजी रुकिए पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए बात, फिर अपनी बातों को आप रखिएगा। तो यहाँ जब 1 केजी खरीद रहे हैं तो हमें महंगा पड़ रहा है, लेकिन जब 5 केजी परचेज कर रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है ना। यस मैम। तो देखिए ये भी आपका तो कंसेप्ट आता है ना मैम कि हम रोज हमेशा यहीं से खरीदते हैं तो दाम कम करके 20 रुपया 30 रुपया भी कम करवा लेते हाँ, वो सारी कंडीशंस अलग है, वो दीज आर द अदर कंडीशंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
Like once बात that करना person, लाइक मैम प्रोसेस करने पे। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बोलने दोगे या खुद ही बोलोगे तुम लोग? नहीं मैम आप बोलिए पहले, उसके हाँ, बाद तो हम समझोगे नहीं फिर कॉन्सेप्ट को, है ना? पहले थोड़ा एक मिनट शांत पहले आप रहिए, ही बोलिए। इंथुजियाज्म इतना भी अच्छा नहीं है, शांत रहो कौशल। अब यहाँ पर जब मैं वेजिटेबल्स की बात कर रही थी, तो यहाँ जो पर्सन है जो भाई पोटैटो सेल कर रहा है, हो सकता है कि वो 1 डे के लिए उसने टारगेट बनाया हो 50 केजी की, भाई एक दिन में 50 केजी सेल करेगा, ठीक है? 50 केजी सेल करेगा वो, मतलब एक दिन में उसका ऐसा कोई टारगेट होगा, और उसने एक दिन में सिर्फ 20 केजी जब उसने पोटैटो सेल किया, तो उसका पूरा टाइम भी निकल गया एक दिन का, और उसके पूरे जो टारगेट थे वो भी सेल नहीं हुआ। लेकिन जस्ट इमेजिन कि जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर उसने टारगेट 50 का बनाया और उसने 100 केजी सेल कर दिया, तो यहाँ उसका टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ? Yes. टाइम सेव हुआ। अगर मान लीजिए उसने 5 केजी एक दिन में, 1 मिनट में उसका मान लीजिए 25 केजी सेल हो गया पोटैटो, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा उसका एडिशनल बेनिफिट होगा। मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर पोटैटो में उसको 5 केजी पोटैटो में, एग्जाम्पल के लिए, सब एग्जाम्पल है जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि 5 केजी पोटैटो में उसको 25 रुपए का फायदा हो रहा होगा। कितना रुपए का फायदा हो रहा होगा? 25 रुपीज का फायदा होगा। और इस 5 केजी की जगह उसने 25 केजी जब सेल किया, तो उसको कितने का फायदा हुआ? 125 रुपीज का, ठीक है? अब 125 रुपया इसने पूरे के पूरे इतने दिनों, इतने टाइम पे, पूरे दिन में उसने 25 केजी बेच के कमाया 125। लेकिन यही चीज अगर आप सोचो कि एक दिन में इसने 25 की जगह पे 50 केजी बेचा, और इसने इसका कॉस्ट जो है 25 रुपया पर 5 केजी की जगह 20 रुपए पर 5 केजी कर दिया, तो यहाँ पर इसको कितना बेनिफिट हुआ? कुछ समझ आया कि जैसे पहले 5 केजी बेचता था, 25 रुपए पर 5 केजी अर्न कर रहा था, तो 25 केजी में 125 इसने अर्न किया। अब इसने पर 5 केजी का कॉस्ट 20 रुपीज कर दिया जल्दी जल्दी सेल करने के लिए, और इसने कितना बेच पाया? ये 50 केजी। केजी। तो इसको फायदा हुआ 200 रुपीज का। लेकिन आप ये चीज देखिए कि अगर 125 रुपए से कंपेयर करेंगे 200 को, तो कौन ज्यादा बेनिफिशियल हुआ? बताओ। 125 रुपीज ज्यादा होता है 200 से, मतलब एकदम ही क्या, मतलब मैथ्स वैसे एबीसीडी में नहीं पता है क्या तुम लोगों को? नो मैम, 125 रुपए फायदा है या 200 रुपए फायदा है, ये बताओ मुझे। मैम 200 का है। 200 का है, 200 क्योंकि ज्यादा सेम टाइम में देखो, यहाँ देखो, सेम टाइम पे जब 10 आवर्स यूज करके आपने 25 केजी और आपने 50 केजी बेचा, तो ऑब्वियस सा बात है कि टाइम आपने एक ही टाइम में आपको ज्यादा 50 केजी बेचने में फायदा हुआ। तो डेफिनेटली सही बात है कि कोई भी पर्सन 5 रुपए कम करके फायदा की तरफ मूव करेगा, तो इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ लोअर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर हुआ कोच? मैंने जो बताया किस टर्म में बताया? यस मैम, Clear हुआ क्लियर ना? है। यस मैम। तो यही एक रीजन है कि जितना ज्यादा जल्दी जल्दी सेल करोगे, थोड़ा कम भी कर दोगे पैसा, तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन है आपका इस लोअर कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट में, कि यहाँ पर जब आप ऑफर कर रहे हैं लो प्राइस में सेलिंग, और जब आप ज्यादा एक बार में थोक में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बल्क में प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन हाई होगा या लो होगा? प्रोडक्शन हाई होगा या लो होगा? जब आपके मार्केट में डिमांड बिल्कुल बल्क में है, क्या होगा? मैम हाई होगा। हाई होगा प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन हाई हो रहा है, सेम टाइम में जब एक्सपीरियंस हो रहे हैं लोग उसको प्रोड्यूस करने में, तो धीरे धीरे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ मूव करने लगेगा। तो आपका जो लॉस है ना उस प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में सेल करने का, वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है, अगर इसको एक इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखिए, तो दिस इज अ बेस्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग इफ यू वांट टू गेट द मोर एंड मोर कस्टमर। फॉर बल्क सेलिंग दिस इज अ बेटर ऑप्शन। क्लियर हो गया? So these are Yes, the ma'am. benefits of the penetration pricing. First one is the customers conversion, improved brand loyalty, reduced competition and the lower cost. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पोटैटो वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया? ऐसा है कि नहीं समझ आया? वो समझ आ गया ना? वो किस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, दैट इज रिलेटेड विद द बल्क सेलिंग। जब आप बल्क में सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में चल के फायदा होता है ना? चलिए, अब कब हमें स्कीमिंग प्राइसिंग यूज करना चाहिए और हमें कब पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज करना चाहिए, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द सम सिचुएशंस एंड कंडीशन। ठीक है,
कंपनी जो है अगर उसको मार्केट साइज के ऊपर फोकस करना है, मार्केट शेयर के ऊपर फोकस करना है तो पेनिट्रेशन, अगर उसको प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है स्कीमिंग, अगर उसको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू चाहिए तो पेनिट्रेशन, अगर उसको हाई प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो आपको स्कीमिंग, अगर उनके टारगेट कस्टमर है the person who is less price sensitive then skimming, high price sensitive then penetration. So this is how we are basically using this two type of pricing strategy. अब चलिए हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की कि वो कब यूज होता है। पहली बात, इनोवेटिव प्रोडक्ट में लिखते जाओ when to use price skimming, when to use price skimming। ये तो मैंने एक शॉर्टकट में ऐसे बताया कि कौन कौन से सिचुएशन में क्या क्या यूज होगा। अब when to use price skimming, सबसे पहली बात इनोवेटिव प्रोडक्ट, सबसे पहला इनोवेटिव प्रोडक्ट, द फर्स्ट थिंग इज इनोवेटिव प्रोडक्ट। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? बताओ, कोई भी इनोवेशन बताओ। चेंजेस लाना मैम। मैम चेंजेस इन बेटर वे। Very good, very good. So innovation is something when you're creating something new in the market which is not available in the market। और द इनोवेशन जो होता है वो कई बार नए प्रोडक्ट को बनाने में भी होता है, पुराने प्रोडक्ट में हम कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसमें भी हम इनोवेशन करते हैं। तो जब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं है या दूसरे कॉम्पिटिटर्स उस तरीके के प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्राइस हाई रख सकते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर के पास दूसरे अल्टरनेटिव भी प्रेजेंट नहीं है, तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट को? बताइए, परचेस करेंगे ना? यस अब देखो एप्पल जो है, एप्पल फोन जो है वो iOS एक ऐसा सिर्फ एक सिंगल फोन है जो iOS यूज करता है। यस मैम। यस तो मैम। उसका जो सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहा है, जो प्रोसेसर वो यूज कर रहा है, वो बाकी तो फोन करते ही नहीं है। तो भाई जब आपको एप्पल खरीदना है, iOS खरीदना है, तो आपके पास एप्पल का ही ऑप्शन है, तो आप कहीं और जाइएगा परचेज करने दूसरा फोन? नहीं जाइएगा ना। तो सेम व्हेन द प्रोडक्ट इज इनोवेटिव और इनोवेशन प्रोडक्ट जो होंगे जिसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन सेट द प्रोडक्ट प्राइस हाई। क्लियर? हम ये कह सकते हैं जब किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल ना हो, या सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल ना हो, या वो जो पर्टिकुलर, और ये भी लेकिन गारंटी नहीं है कि आगे चल के उनका सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं होगा, ये नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन हाँ इन द इनिशियल स्टेज अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है और जो प्रोडक्ट है दैट इज अ innovative product, like something which is not available in the market, so in that situation we can set the price high. Clear? So yes, Yes, you can ma'am. say that as well. नेक्स्ट वन इज टारगेट कस्टमर। जब आप बिल्कुल नीश मार्केटिंग में डील कर रहे हैं, NICHE, नीश मार्केटिंग का मतलब पता है क्या होता है? जब तुम लोग सेकंड वाला बुक हम लोग शुरू करेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले हम लोग STP मॉडल पढ़ना है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो वहां जब हम टारगेटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर एक मार्केट आएगा, नीश मार्केट। तो चलिए मैं तुम लोग को थोड़ा सा नीश मार्केट के बारे में बता रही हूँ। टारगेट कस्टमर का यहाँ मतलब वही है कि जब आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, तो एक माइंडसेट के साथ करा रहे हैं कि बस इतने यही कस्टमर्स के लिए ये प्रोडक्ट है भाई, दूसरे कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए रोलेक्स जो है वो वॉच है, पहली बात वो एक ऐसा ब्रांड है जो उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है अभी तो फिलहाल। कुछ और भी है जैसे गुची एंड ऑल, दीज आर इवन, बट रोलेक्स इज रोलेक्स, लाइक दैट काइंड ऑफ ब्रांड इमेज दे हैव। So in those companies which are basically making a high innovative product, they have very selected customers, उनके बहुत selected customers होते हैं। भाई Audi BMW जो है वो मैं थोड़ी परचेज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, है ना? मिडिल क्लास फैमिली तो परचेज नहीं कर सकता, तो उनके बस टारगेट कस्टमर्स वही है कि हाई प्रोफाइल पीपल एंड द रिच पीपल आर गोइंग टू परचेज दोस प्रोडक्ट। So you target highly selective customer or the early adopters, यानी कि वैसे लोगों पे आप जाकर के फोकस कर रहे हैं जो लोग आपके अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स का मतलब है कि जो तुरंत से प्रोडक्ट मार्केट में आया और तुरंत से परचेज कर लिया। कुछ लेगार्ड्स होते हैं, जो मैंने बताया था, लेगार्ड्स कौन होते हैं? जो सबसे लास्ट में प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। जब उस प्रोडक्ट का मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज में पहुंचने वाला होगा, तब जाकर के आप प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। दैट इज लेगार्ड, ठीक है? तो यहाँ पर जो टारगेट कस्टमर है, ध्यान दीजिएगा कि टारगेट कस्टमर जब आपके हैं,
आपको पता है कि ये प्रोडक्ट आपने किसके लिए बनाया है और किसको सेल करना है, तो ऐसे सिचुएशन में यू आर बेसिकली सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हाई। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? When you are selling the product to the target customer, you are not in dilemma that who is going to purchase the product, but you are very much confirmed that only these people or this segment is going to purchase your product. So in that situation, you can put the price high in the initial stage. Clear? Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. चलिए, unknown demand, ठीक है। अब यहाँ पर टारगेट कस्टमर को ये बिल्कुल क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट वाला पॉइंट आया। लेकिन चले ठीक है, अननोन डिमांड का मतलब ये है कि जब आपको पता नहीं है कि कितने लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अननोन डिमांड मतलब इफ यू डोंट नो द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, यानी कितने लोगों का डिमांड है मार्केट में आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप बहुत ही ज्यादा रिस्क में होते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर किया है। जब आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपने उससे R&D पे, उसको प्रोडक्शन पे बहुत हाई कॉस्ट इनकर किया होगा। और ऐसे सिचुएशन में जब आपको बहुत ज्यादा डिमांड के बारे में नहीं पता है कि मार्केट में कितने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग में ही प्राइस हाई कर दीजिएगा, ताकि कम से कम प्रॉफिट तो आए, कम से कम लॉस में तो ना जाए। तो ये चीज सोचते हुए, if you don't know the demand for your product, you might set the high price to uncover the production cost, यानी जितना भी उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट आया उसको अनकवर करने के लिए। और प्रमोशनल एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हैं जिसमें आपका लार्ज इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो इसको कवर करने के लिए इन द स्टार्टिंग फेज you will set the price high when you don't know that what is the demand of your product in the market. Clear? Yes, ma'am. Turn on your camera, everyone. Turn on your camera. अच्छा, तुम लोग, मैं सोच रही थी कि तुम लोगों से एक क्वेश्चन करूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि, चलिए, नेक्स्ट वन इज लो प्राइस इलास्टिसिटी। अब अननोन डिमांड हो गया, आपका टारगेट कस्टमर हो गया, इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गया, अब हो गया लो प्राइस इलास्टिसिटी। ये मैं बता रही हूँ कि कब हमें स्कीमिंग प्राइसिंग यूज करना चाहिए। तो लो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, द प्रोडक्ट प्राइस हैज अ लिटिल रूम फॉर चेंज और द इनइलास्टिसिटी इन इट्स अर्ली स्टेज अंटिल द कंपनी फाइंड अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर इट्स मार्केट। लाइक जहां पर आप प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। लो प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन द प्राइस विल नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, एंड इन द अर्ली स्टेज, और कंपनी ये तब तक नहीं करेगा जब तक मार्केट में उसका एक प्रॉपर पोजीशन नहीं है। स्कीमिंग अलाउज यू टू जनरेट प्रॉफिट डिस्पाइट लो सेल्स वॉल्यूम, यानी अगर आपके प्रोडक्ट कम भी मार्केट में सेल हो रहे हैं तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिलेगा। तो थैंक्स टू हाई प्राइस, तो वंस द प्रोडक्ट सिक्योर अ मार्केट पोजीशन, एक बार मार्केट में उसका पोजीशन बन गया, देन आपका सेल्स वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा जब आप उसका प्राइस थोड़ा कम करोगे। So when there is a low price elasticity wala situation, then we are basically able to set the price, use the price scheming. Okay. Next one is when to use penetration pricing. कब यूज कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? Yes, ma'am. हाँ बोलो। And when customer is highly price sensitive. Very good. Ma'am, for increasing our market share. Good. This is the reason. Very good. But I am asking कि कब ये suitable है? ये तो ऑब्जेक्टिव के साथ तो suitable है ही, लेकिन जब मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपटीशन है, एग्जिस्टिंग कंपटीशन का मतलब समझ रहे हो कि मार्केट में ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट की तरह और भी लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो योर न्यू प्रोडक्ट इज ऑलरेडी ऑन द मार्केट, वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड सेल इट, ऑलरेडी कोई वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड को सेल कर रहा है, तो अगर आप लो प्राइस नहीं करोगे ना, तो वो वही वाले ब्रांड में ही प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, आपके तरफ नहीं आएंगे आपके, है ना? आई बात समझ में? When the market have existing, मार्केट में आपके जो है वो existing competition है, यानी कि ऑलरेडी कोई competitors हैं जो आपके प्रोडक्ट के जैसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कि substitution is available. So for attracting the customers, we have to using this pricing. Second one is introductory campaign. जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था
कि जब अभी ना लेस जो है ना वो बहुत सारे फ्लेवर्स लेकर आया है। तुम लोगों को तो पता है लेस के कितने सारे फ्लेवर्स आते हैं चिप्स के, देखा है तुम लोगों ने, देखा है ना? कितने लोगों को पसंद है चिप्स? कितने लोगों को पसंद है चिप्स? अरे लेस लेस कितने लोगों को पसंद है? यस मैम। हाँ मुझे भी पसंद है बहुत ज्यादा। चल तो अब लेस के बारे में मैंने क्यों यूज किया, ये वर्ड क्यों यूज किया, इसके बारे में बताती हूँ। कि जो आपका अभी ना एक सन ड्राइड चिप्स वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, सन ड्राइड चिप्स। सन ड्राइड का मतलब होता है जो हम लोग घर पे देखते हैं मम्मी चिप्स बनाती हैं, तो वो क्या होता है धूप में सूखे होते हैं, तो दैट इज सन ड्राइड चिप्स के नाम से वो चिप्स अभी आया है, एंड दैट इज इन द इंट्रोडक्टरी फेज। तो उन्होंने, मैंने बताया भी था आप लोगों को, इंट्रोडक्टरी फेज में तो वो भी ऑफर दे रहे 40% एक्स्ट्रा। Once the people will start purchasing, so many customer will like that taste, flavor, then obviously they are going to demand that particular type of chips only. So here they are using that kind of thing. कि introductory campaign में क्या होता है कि आप initial time पे जब प्राइस को लो रखते हैं और क्वांटिटी हाई रखते हैं, तो आपके जो कस्टमर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप कई बार ये भी करते हैं, ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्टरी फेज में आप सिर्फ प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, कई बार जो है आप फ्री सैंपल्स भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो ऑफर फ्री प्रोडक्ट सैंपल्स एंड फ्री ट्रायल पीरियड फॉर योर सर्विसेज। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, वही एक्वायर करना न्यू कस्टमर। So once the customers will increase, then we are going to return to the price to the standard level. So for the existing competition, when the already existing companies are available who are selling the product, like what product with what product you are dealing, and in the case when there is an introductory campaign, यानी कि when you want to introduce a product in the by campaigning, like तुम लोग में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब मॉल्स में ना कई बार फ्री में चिप्स, फ्री में कोक, फ्री में एनर्जी ड्रिंक, इस तरीके की चीजें वो क्या करते हैं, आपको ट्राई करने के लिए देते हैं और आपको एक फीडबैक का पेपर दे देंगे कि भाई इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ये। तो दिस इज द वे व्हाई दे आर बेसिकली यूजिंग सच काइंड ऑफ थिंग, ट्रायल वाला, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज हो। तो इंट्रोडक्टरी कैंपेन का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से वो कंपनी के लिए एक हाई एक्सपेंस है। So penetration pricing is better when we are doing the introductory campaign, when we are basically introducing the product in the market. Next one is entry barrier. So I don't need to elaborate this point, entry barrier. True? Entry barrier को हमें बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे? No, ma'am. है ना? High price elasticity. High price elasticity का मतलब कौन बताएगा मुझे? High price elasticity. Raise your hand. High price elasticity. Yes, Vaishnavi. मैम जब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है टाइम टू टाइम। That is high price elasticity. High price elasticity का मतलब क्या है? Very good, Vaishnavi, good. When a low price attract more customer or result in the higher sales volume, इसका मतलब प्राइस इलास्टिक है, जितना ज्यादा प्राइस को कम कीजिएगा उतने ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्राइस को हाई कीजिएगा उतना ज्यादा आपके कस्टमर कम होंगे। तो जब मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी वाला सिचुएशन आता है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा कस्टमर्स के नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएंगे। So when a product has many substitute, जब आपके मार्केट में प्रोडक्ट का बहुत सारा सब्स्टिट्यूट है, and the client can choose between your product or a similar item from the different brand, मतलब आपके प्रोडक्ट में और दूसरे ब्रांड जो आपके जैसे प्रोडक्ट को सेल करे उसमें चूज करना होगा। तो डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज फ्लेक्सिबल, आपके प्रोडक्ट का डिमांड फ्लेक्सिबल रहेगा। क्यों रहेगा फ्लेक्सिबल? क्योंकि कस्टमर्स के पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस सही नहीं लगेगा तो दूसरी जगह से खरीद लेंगे। तो ऐसे केस में पेनिट्रेशन प्राइसिंग अच्छा है कि जब आप प्रोडक्ट का प्राइस कम रखें अपने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से, और आप अगर आप और कम करेंगे तो और भी कस्टमर्स आएंगे। तो ये वाला सिचुएशन रहेगा कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहेगा जब कंपटीशन हाई है। और हाई प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि जो प्राइस है वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिमांड भी आपके प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है ना? वो तो पता है ना, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। यस मैम। पता है? इन सारी कंडीशन में आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्लास में, अब चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स बता ही देती हूँ, अभी टाइम भी है, आराम से देखते हैं हम लोग। अच्छा, एग्जांपल में देखिए,
इस एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कुछ कार वगैरह से रिलेटेड एग्जाम्पल है, सुनिएगा। अ कार मैन्युफैक्चरर releases an 8-cylinder luxurious SUV with various innovative features that no other car currently on the market offers। यानी SUV ने अभी 8 सिलेंडर लग्जरी, आपने सुना भी होगा, आई थिंक ये न्यूज में भी आया था, दे हैव 8 सिलेंडर, ठीक है। तो उन्होंने अभी 8 सिलेंडर लग्जरियस एसयूवी में प्रोवाइड किया है, और ये इनोवेटिव फीचर्स जो है ना वो बाकी किसी भी कार में अभी तक मार्केट में नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट में इसने क्या किया एसयूवी ने, द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस मॉडल इज द हाईएस्ट पॉइंट, यानी बहुत ही महंगा, स्टार्टिंग में ही बहुत महंगा पे था, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वो पता, एंटिसिपेशन इज समथिंग विच इज नॉट 100% श्योरिटी बट वी कैन सी, मतलब एंटिसिपेट करना, मतलब फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर। So anticipate करा demand that may be high during the first year as early adopter and the quality lovers are eager to buy the newest SUV model। तो इन्होंने जो प्राइस हाई रखा, तो उनको पता है कि जो लोग कार लवर हैं, जिनको कार्स खरीदना बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट ईयर में अर्ली अडॉप्टर्स उनके कार को परचेज कर ले, और ईयर लेटर द कार कंपनी रिलीजेस अनदर मॉडल रिसेंबलिंग द हाई एंड वन। तो एसयूवी ने ये काम किया है कि उन्होंने पहले लग्जरियस कार को इंट्रोड्यूस किया विद द 8 सिलेंडर, एंड उसके बाद उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस रखा प्रोडक्ट का, और फर्स्ट ईयर में मतलब जो अर्ली अडॉप्टर्स के कार लवर्स थे दे परचेज इट। सो द स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि जब आपको पता है कि कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल नहीं है, मेरे जैसे प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में दे आर बेसिकली यूजिंग द स्कीमिंग प्राइसिंग। अब वही अगर मैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग की बात करूं, तो एक सुपरमार्केट कंपनी है जिसने अभी डिस्कवर किया है डेटा, और उसने दिखाया है कि जो कस्टमर डिमांड है करेंटली, उनका डिमांड किसके तरफ मूव कर रहा है पता है? ऑर्गेनिक फूड की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहा है? ऑर्गेनिक। Organic अच्छा, food। कैन एनीवन Organic टेल मी food। व्हाट इज द ऑर्गेनिक फूड? किसी को नहीं पता? मैम जो प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, आई थॉट उसको ऑर्गेनिक फूड्स नेचुरल कहते हैं। इंग्रेडिएंट से क्या बनते हैं, उस प्रोडक्ट को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। दाल को बनाने के लिए क्या करते हो? पल्सेस को बनाने के लिए क्या मिलाते हो उसमें? पल्सेस को बनाने के लिए ऑर्गेनिक फूड वो फूड्स होते हैं जिसमें कोई भी आपके केमिकल्स यूज नहीं किया गया होगा। जब उसको एग्रीकल्चरली, जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, हमने कोई भी तरीके का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, विडीसाइड, ये सारी चीजें जब हम यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो फूड जो प्रोड्यूस होता है वो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। क्या बोलते हैं उसको? Organic food। ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड। अब ऑर्गेनिक फूड का क्या फायदा है बताती हूँ। ऑर्गेनिक फूड जो है, आजकल देखते हो ना लोग कितने हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको देखो सब जिम चले जाते हैं, द पीपल आर कॉन्शियस टुवर्ड देयर हेल्थ। आप देखो हेल्दीफाई, अभी एक ऐप आया है विच इज टेलिंग अबाउट द फूड डाइट, कि हमें कैसे खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं द पीपल आर इंक्रीज, द हेल्थ कॉन्शियस इज इंक्रीजिंग इन द मार्केट। तो यही चीज यहाँ पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में एग्जाम्पल में लिया गया है कि जो सुपर मार्केट कंपनी है उन्होंने डिस्कवर किया है भी डेटा कि जो आजकल के कंज्यूमर्स है ना, वो ऑर्गेनिक फूड का डिमांड बहुत बढ़ गया है उनका, ठीक है। जो कंपनी ऑलरेडी सिग्निफिकेंट जिसका मार्केट शेयर है, वो मैनेजर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो नए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को परचेज करे, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को परचेज करे। Due to the large customer base, the supermarket company started selling the organic food product at lower price than its competitors. So in short, when we are understand that the customer का demand बहुत high है उस प्रोडक्ट का, और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे ही करेंगे कस्टमर, तो उसके लिए सुपरमार्केट ने क्या किया, उसने अपने प्रोडक्ट जो वो ऑर्गेनिक फूड में डील करने लगा, वो उसको प्राइस लो कर दिया ताकि जो बाकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को या फूड को बेच रहे हैं उससे ज्यादा हमारे यहाँ सेल हो, क्योंकि कस्टमर तो है ही, वो तो है ही, लार्ज कस्टमर बेस है मार्केट में। तो सुपरमार्केट ने एक तरीके से पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि बाकी जो कॉम्पिटिटर ऑर्गेनिक फूड बेच रहे हैं उनकी जगह पे हमारे यहाँ से कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को परचेज करें। अच्छा, यहाँ एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके स्कीमिंग प्राइसिंग में डिमांड समहाउ अननोन होता है, लेकिन आपके पेनिट्रेशन प्राइसिंग में कहीं ना कहीं डिमांड का हमें नॉलेज पहले से होता है कि कस्टमर का डिमांड इस प्रोडक्ट को लेकर कितना ज्यादा हाई है। So this is the example of penetration strategy and scheming strategy, that the innovation idea of SUV
that lead to give the profit in the initial stage, and the idea of the supermarket toward the organic food basically help them to take the decision of penetration pricing. So I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's move toward, like, a scheming pricing or penetration pricing is completed. Thankfully, we completed this particular topic. Let's move toward the another type of pricing strategy, and that is cost plus pricing strategy. Cost plus pricing strategy. Cost plus pricing strategy. Okay. See, I am not able to write properly while using this mouse, so I guess you all are able to understand cost plus pricing strategy. ठीक है. अच्छा, what is cost plus pricing strategy? होता क्या है ये? तो cost plus pricing strategy है, involve करता है markup to the cost of goods and services to arrive at the selling price. ठीक है, यानी मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो 20 रुपीज का सेल हो रहा है, तो दिस इज द एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन विच दिस प्रोडक्ट इज सेलिंग. So this product consists the cost of almost everything. So in the cost plus pricing, जो आपका मार्कअप होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो अराइव हो रहा है सेलिंग प्राइस के लिए मार्केट में, यानी कि प्रोडक्ट जिसको हम सेल करने वाले हैं, मान लीजिए उसको बनाने में 50 रुपीज लगा है, तो मार्केट में उसे अवेलेबल हम कराते हैं 70 में, तो जो मार्कअप प्राइस है दैट इज 20 रुपीज, वी आर एडिंग विद द कॉस्ट ऑफ द गुड, so finally the product cost is 70. So this is known as cost plus pricing. यानी कि here we are basically consider toward the production cost. Production cost में आपका लेबर कॉस्ट, आपका ओवरहेड कॉस्ट, आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी आपके ओवरहेड कॉस्ट है वो सारे आ जाएंगे, और आपका एक्सपेंस रिलेटेड विद द एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ आपका आ जाता है. तो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट में जब हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा एज अ मार्जिन जब हम यूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ठीक है, इस अप्रोच में हम क्या क्या चीजों को देखते हैं, इस अप्रोच में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे. वी एड टुगेदर द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट, एंड टू मार्कअप परसेंटेज. जैसे ये 20 रुपए जो है, दिस इज द मार्कअप अमाउंट. ठीक है, एंड दैट कैन बी इन द परसेंटेज एज वेल, यानी ये परसेंटेज में भी हो सकता है. कैसे? जैसे 50 रुपीज का प्रोडक्ट है, उस पर हमने 10% मार्कअप प्राइस रख दिया, तो इसका मतलब है 50 रुपीज का 10% क्या हुआ, 5 रुपए, तो लाइक 55 रुपीज. तो दिस इज द मार्कअप परसेंटेज. तो इस अप्रोच में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे, क्या क्या चीजों को हम ऐड करते हैं, यानी एडिशन का काम होता है, इसलिए प्लस नाम है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. तो यहाँ पर हम कॉस्ट के ऊपर एडिशनल मार्कअप अपना बेनिफिट को ऐड करेंगे. ठीक है, यहाँ हम क्या क्या चीजों को देखेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि जो लेबर आपने एंगेज किया है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, ओवरहेड कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड ऑल. ठीक है, इन सब को आप प्लस कर लेंगे. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका 50 रुपीज का जा रहा है रॉ मटेरियल, 20 रुपीज आपका वेज है, 10 रुपीज जो है आपका ओवरहेड कॉस्ट है. तो इस तरीके से इसका टोटल रेट दैट इज 80 रुपीज. अब इस 80 रुपीज के ऊपर हम मार्कअप लगाएंगे. ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है दैट इज यूज्ड विद इन अ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, जहां कस्टमर जो है वो कस्टमर रिएम्बर्सेस द सेलर फॉर ऑल कॉस्ट इनकर्ड एंड ऑल्सो पेज अ नेगोशिएटेड प्रॉफिट इन एडिशन टू द कॉस्ट इनकर्ड. इन शॉर्ट बस ये चीज समझिए कि आप जब भी कोई एडिशनल पैसा जब लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा मार्कअप प्राइस जो है मार्जिन लेंगे, तो दैट इज बेसिकली कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. अच्छा, एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे एग्जांपल तुम लोग को दे रही हूँ, ध्यान से सुनना. एबीसी इंटरनेशनल एक है आपका, उसने डिजाइन क्या है प्रोडक्ट को, जिसमें जो कंटेन कर रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने रुपए का, 20 रुपीज का. तुम लोग भी करते जाओ, इसको बताना मुझे फाइनली कॉस्ट क्या हुआ. 20 रुपीज का इसका जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है. क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है. डीएमसी का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. ठीक है, और इसका जो लेबर कॉस्ट है, दैट इज 5.5. ऐसे तो यहाँ डॉलर लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोग डॉलर वॉलर छोड़ो, क्योंकि डॉलर में से आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको देखिए. डीएमसी है यहाँ पर 20 रुपीज है आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर है आपका 5.5. उसके अलावा आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है दैट इज 8 रुपीज 25 पैसे. ठीक है,
और इसके ऊपर, अब इसके ऊपर इन्होंने मार्कअप लगाया है 30%। बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना आया, मार्कअप 30%, बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना पैसा होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20 रुपीज, देन लेबर कॉस्ट 5.5, ओवरहेड कॉस्ट 8.25, मार्कअप लगाया है 30% का, क्या कॉस्ट होगा, कैलकुलेट करो। सोच रहे होगे कि मैम मार्केटिंग पढ़ाते पढ़ाते मैम maths की तरफ move कर। 43.87 पैसा। Anyone else? Very good अंकित, 43.88। अब ये कैसे निकला, ठीक है चलो देखो, 20 रुपीज, 5.5 और 8.25 कितना हुआ, मैम ये वो 33.75 हुआ। 33.85। अब 33.85 का, हाँ 75, सॉरी 75। अब इसका आपका 30% कितना हुआ, 10.125 मैम। 10.1, हाँ 10.125। तो बेसिकली द आंसर विल बी, मतलब 875 है तो इसको हम ऐसे राउंड में 88 ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 43। सो द आंसर इज 43.88। सो दिस इज अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टुवर्ड, मतलब हम लोग इसी टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आई गेस थोड़ा सा तो समझ में आ ही गया होगा कि कॉस्ट प्लस का क्या बेसिकली स्ट्रैटेजी है इस प्राइसिंग का। यस मैम। समझ में आया? Yes, अच्छा, Yes, ma'am. तुम लोग सोच रहे हो कि मैम कहाँ से मार्केटिंग से मैथ्स की तरफ मूव कर गए, लेकिन दिस इज द बेसिकली पॉइंट, दिस इज द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का ये मेथड है कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं प्राइस को। इसके कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला भी करेंगे इसका, ठीक है? ओके, यस मैम। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। एनीवन हैव एनी डाउट? Yes, No, yes, ma'am. No, ma'am. ma'am. यस अरमान बोलो, डाउट है? कस्टमर कन्वर्जन मैम बता दीजिएगा। कस्टमर कन्वर्जन का मतलब बेटा ये है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट में ऑलरेडी आपके कस्टमर्स जो हैं वो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, है ना? जब आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज कीजिएगा, यानी कि जब आप प्रोडक्ट का प्राइस लो रखिएगा, तो वो सारे के सारे कस्टमर्स हो सकता है कि आपके यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दें, है ना? सो इन शॉर्ट द कस्टमर्स आर कन्वर्टेड, द customer of the other brand or company is converted to your customer. So that is basically customer conversion. Clear? Yes, yes, ma'am. Yes. Okay. Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. See you all in the next class. Thank you, ma'am.